थी बात कि तुम इंजीनियरिंग क्यों करना चाहती हो। यहाँ पे जिस तरह के लोग मिलते हैं, यहाँ पे जिस तरह का माहौल होता है, इट जस्ट pushes you in every limit possible. In a lot of societies I have seen internal politics and internal favorism that leads to not recognizing of the real talent. Hi. तो ये बात है लगभग 2020 की। मैं थी ऑलमोस्ट 16-17 साल की और मेरे को साइंस स्ट्रीम पसंद थी, PCM पसंद थी, तो स्कूल में PCM ले लिया था और पेरेंट्स ने फिजी में भी एडमिशन दिलवा दिया था। किसी ने पूछा कि 5-6 महीने पढ़ाई के बाद कि तुम इंजीनियरिंग क्यों करना चाहती हो, कि तुम इंजीनियरिंग क्यों करना चाहती हो। तो मेरे को हिट किया, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था इतना। सो आई डिड सम रिसर्च एंड वॉच सम यूट्यूब वीडियोज़ एज एवरीवन डू एंड आई फाउंड आउट कि यार लिमिटेड ऑप्शंस ही है। यू कैन गो इनटू कोर, you can go into research, or you can be a really good coder. And इतना attractive नहीं लगा, but I kept on going. After a few days, I realized कि यार engineering में तो मैंने देखा कि people are doing MBA and also cracking the toughest exams of the country like UPSC. इतना ही किया and then I kept on studying and then I realized कि people are doing all sorts of random shit after being an engineer and they are actually really good at it, like traveling, blogging, comedy, acting. It hit me that many of the startup founders and multimillionaires of the countries are also engineers. I had no idea what to do in life, so I thought let's explore in an engineering college. बट ये इतना बड़ा मोटिवेशन नहीं मिला मुझे 2 साल जेई के लिए पढ़ूँ एंड देन जेई क्रैक करूँ। जो मेन मोटिवेशन आया वो आया कि लॉकडाउन था, घर में बंद थी और फिर देखा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कैंपस यार इतने बड़े होते हैं एंड यहाँ के फेस्ट यहाँ के लोग और यहाँ पे लोग हर टाइप के अपने पैशन फॉलो कर रहे होते हैं। दिस इज़ द थिंग दैट अट्रैक्टेड मी कि 4 साल ऑफ मस्ती एंड 4 साल ऑफ फाइंडिंग हु यू आर। इट साउंड्स क्रेजी राइट कि टू डू इंजीनियरिंग जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ। I think that's the reality of most of the people, and most of the people end up taking placements. Some of the things really fulfill my heart. Like I learned a lot of skills here, like you can't even imagine. I made strong connections and I learned coding to graphic designing to web development to video editing and I'm just loving it. I still don't know what to do in life being in second year of college, but I'm just loving it, exploring it. So this is one of the con. You won't know what to do in life even after being in an engineering college. The second one is कि ऐसा लगता है ना कि इतना बड़ा campus है, you are a hostler and you know a lots and lots of people, but life ना monotonous हो ही जाती है. You know, going to classes and then coming back, it's not that happening. And after experiencing these cons, even after getting disappointed after not filling some of my major expectations, I think कि जिनको भी साइंस पसंद है उसे इंजीनियरिंग करना चाहिए। Sounds weird right? पर ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के लोग मिलते हैं, यहाँ पे जिस तरह का माहौल होता है, it just pushes you in every limit possible. You know, whether it be doing something of your own, whether it be academics here, whether it be sports here, whether यहाँ की societies and everything, just the pressure it has just make you a different personality. It actually makes you ready for dealing with any situation in your life. So engineering is the way of living, a well-known quote, and I truly believe in it. And one more thing I want to talk about कि यहाँ पे आने से पहले लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, तो बहुत ज़्यादा मत रखना क्योंकि लाइफ नॉर्मल ही रहती है, यहाँ पे बहुत अलग नहीं होती। ऑफकोर्स स्टार्टिंग के फ्यू मंथ्स में लगता है कि वाओ इट्स सो एक्साइटिंग कि हमें नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, नया हॉस्टल रूम है एंड देन सोसाइटीज़ आर एक्चुअली रियली फन है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था एंड दे आर एक्चुअली रियली गुड एट व्हाट दे डू. वी हैव अ लॉट ऑफ सोसाइटी एंड द वन con about societies is
जहाँ पे लोग आते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स आती है, सिंपल सी बात है, एंड देयर इज़ हायरार्की. सो द पॉलिटिक्स थिंग मेड मी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि in a lot of societies I have seen internal politics and internal favorism that leads to not recognizing of the real talent, and they actually make you work for hours. तुम्हें एक दो सोसाइटीज़ मिलेंगी जो बहुत अच्छी हैं, बट तुम्हें अपने आप को खुद ही पुश करना है, तुम्हें खुद ही एक्सप्लोर करना है, तुम्हें खुद ही नए लोगों से मिलना चाहिए. सोसाइटीज़ ऑब्वियसली आर अ मीडियम टू दैट, बट नॉट समथिंग टू डिपेंड ऑन. So I would say come to an engineering college, be the best you want to be in top 10%. जो भी कर रहे हो बस पूरे दिल से करो, whether it be मस्ती, बिकॉज ये 4 साल की मस्ती ना इसके बाद नहीं मिलेगी. नहीं मिलेगी, मैं बता रही हूँ. मस्ती कर रहे हो दिल से करो, पढ़ाई कर रहे हो दिल से करो, सोसाइटीज़ में डांस कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, या फिर स्पोर्ट्स खेल रहे हो, या फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, बस पूरे दिल से करो यहाँ पे. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ in an engineering college, in a tier 1 engineering college, that you can take advantage of. So I have my friend Alok Singh with me. So he is a student in this college with computer science stream. Currently he is a startup founder, and he's a coder and a web developer, and what else? He's also a video content creator. He will share his perspective of what were his expectations before coming to this college and what turned the reality. Okay? सो हेलो एवरीवन, आलोक दिस साइड, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी इस कॉलेज से क्या एक्सपेक्टेशन थी आने से पहले. तो वो स्टार्ट करते हैं. पहली एक्सपेक्टेशन जो मेरी इस कॉलेज से थी कि कॉलेज का कैंपस अपना काफ़ी बड़ा हो और इस कैंपस में काफ़ी सारी ग्रीनरी हो, जो कि इस कैंपस में है. आप आके देखोगे कि आपको बहुत बड़ा कैंपस और बहुत सारी ग्रीनरी मिलने वाली है. तो जी, कॉलेज से सेकंड एक्सपेक्टेशन जो थी मेरी वो थी फेस्ट के रिगार्डिंग. तो कॉलेज के फेस्ट यार काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे हिसाब से, और जो हमारा DTU है उसमें होता है NG फेस्ट, और NG फेस्ट फेब के टाइम पे होता है, ठंड के टाइम पे होता है, रात में इतनी तगड़ी DJ नाइट हो रही होती है हमारी. कॉलेज के हर कॉर्नर पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होती है, और ओवरऑल जो हमारा फेस्ट का एक्सपीरियंस होता है DTU के अंदर वो बहुत ही प्यारा था. जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो DTU ने फुलफिल करा है. तो या दिस वाज द सेकंड पॉइंट. तो जो तीसरी एक्सपेक्टेशन थी मेरी कॉलेज से कि जो प्रोफेसर्स हैं वो चिल होने चाहिए, वो क्लासेस में लैपटॉप अलाउ कर देना चाहिए, उन्हें फ़ोन अलाउ कर देना चाहिए. तो फ़ोन तो अलाउड है, लैपटॉप का ऐसा रहता है कि कुछ प्रोफेसर कहते हैं कि भाई तुम लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकते, कुछ कहते हैं लैपटॉप यूज़ कर सकते हो. तो इसका पार्शियली ट्रू है. ये एक्सपेक्टेशन काइंड ऑफ फुलफिल्ड नहीं हुई मेरी. तो या पढ़ाई के मामले में ऐसा सीन है DTU के अंदर. तो यार जो चौथी एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से कि रेशियो अच्छा हो, जो कि मेरी नहीं थी, बट स्टिल अगर आपकी है तो वो फुलफिल नहीं होगी. वाओ अबे साले. तो यार पांचवी एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं. वो रिलेटेड थोड़ा पर्सनल है. मेरा पर्सनल गोल्स थे कुछ कॉलेज में आने के बाद कि कॉलेज में आके हम मस्त कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे, जो कि हमने नहीं किया फर्स्ट ईयर में. थोड़ा बैकग्राउंड बताओ तो यार, मैंने पहले कंटेंट क्रिएट करा हुआ है 10वीं क्लास तक. 1 मिलियन व्यूज़ भी है मेरे पास, 10,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं. बट कॉलेज में आके मैंने कंटेंट क्रिएशन करने के लिए सोचा था, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया. उसके अलावा मैंने सोचा था कॉलेज में आके बहुत सारी सोसाइटीज़ ज्वाइन करेंगे, और मैंने एक भी सोसाइटी कॉलेज की ज्वाइन नहीं करी. तो या दिस वाज इट. Well, one topic I didn't touched on is the girl-boy ratio. Well, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ी तो लड़कियाँ होंगी, एंड एक्चुअली द रेशो इज़ रियली बैड. मेरी क्लास में खाली 2 लड़कियाँ हैं, इंक्लूडिंग मी. सो डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत सारी लड़कियाँ होंगी. ऑब्वियसली देयर आर अदर डिपार्टमेंट्स लाइक डिज़ाइन, MBA, MSc, PhD स्टूडेंट, तो लड़कियाँ दिख जाती है. बट इन योर क्लास, इन BTech, दे वोंट बी मच गर्ल. पर लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो भी मैं लड़कियों से मिली हूँ, जो भी मेरी फ्रेंड्स बनी है, they are very raw and real, not superficial. I have seen a lot of people in other colleges. I won't take specific names of colleges either, but I have seen women are very jealous of each other. Women are have a very like superficial bond. So ऐसा नहीं है यहाँ पे. If you are a girl and if you are a boy, I think you can have the best of female friendships in an engineering college, because for women they are really looking forward for strong male friendships. and यहाँ की दोस्तियाँ यार सालों तक काम आती है. यहाँ की कनेक्शंस will help you through life, because यहाँ पे लोग
some are the CEOs and some are maybe the startup founders and doing great in their life. So the connections make really strong connections here, and they will help you through life. I think we touched mostly on all the topics: societies, ratio, career options, friends. And if you feel you want me to talk about something very specific out of these, you can tell me in the comment section. But it was an overall view for you to what to expect from an engineering college and what can be the reality. And this is my hostel, this is my campus, and I'm really happy to be here. Thank you Alok bhai for sharing your views. I hope आप लोगों को इस वीडियो को देख के कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, जो आप सोच रहे होगे, आपने एक पर्सपेक्टिव बना लिया होगा अबाउट इंजीनियरिंग कॉलेज. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.